determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do. Your attitude determines how well you do it. Good afternoon to everyone present here. Today I welcome all of you to the short program conducted for Dr. Rashmi and Dr. Afzal for their selfless services to our hospital. While the journey seems long and hard at the beginning, with perseverance and dedication, the rewards at the end last a lifetime. To begin with, I would request our administrator, Sister Bhagya, to please come forward and speak few words for them. Respected doctors, head of the departments, my dear sisters, or dear staff, as she told that few words, so I will say only few words, yes, because all are rushing to play the Holi. No? Then you may have your own shopping and all for the Holi, the color of festival. Good. So today, a special day, as we all have gathered here to celebrate the life and the career of our respected doctors, Dr. Rashmi Kulshreshtha and Dr. Afzal Ahmed. They both serving the sick and suffering in this institution for a long time. I think since 2010 onwards they are here. Am I good? So a doctor is a person and the profession of training and healing and treating people who are sick. They are a source of hope and fortitude. You may be agree with me that if I am saying that doctors are often compared to God, because God provides us life and doctors assist us in leading a healthy lifestyle and may have assisted many of us in obtaining another life following serious illnesses. Dear doctors, both of you gave a great contribution and the growth and expansion of this hospital. Let me not miss this opportunity of saying a few words in both of you. Dr. Rashmi Kulshreshtha has worked in this hospital since 2010 as a consultant in the Department of Obs and Gynae and known for her commitment and dedication. Besides being an excellent, creative and hardworking doctor, she is very good at managing serious patients by taking entire responsibility of the patients. I want to say that Dr. Rashmi has always been more than just a doctor, that treating the patients with a smile and a cheer, motivating and encouraging the patients, even in her distress. Her obligation to the patients is first. And looking to Dr. Afzal, working as a medical officer in the Department of Emergency, his tenure in the hospital is remarkable. The kind of work culture and attitude he has built will stay forever. Working in the emergency department and handling different kinds of patients is not a small responsibility. Rather, it's a big responsibility as a medical officer. Rendering the time, the suffering and the sick people with the generosity and the joy and responsibility. As I experienced that, he is very fast in his work and prompt in giving information to the main consultants. As per the hospital records, they both attained the age of retirement, but they are ready to continue their post as honorary doctors. So on behalf of this institution and all staff, I would like to thank both of you and appreciate your valuable effort and hard work. May God bless you. And on this time, just I invite both of you to grace the day by receiving our honoring.
Reverend sisters, doctors, and friends, hearty welcome to all of you in this auditorium. I feel to be proud to be given opportunity by the hospital administration to honor our colleagues Dr. Rashmi Kulsreshtha and Dr. Afzal Ahmed for their long and fulfilling years of service in this hospital. Dr. Rashmi joined this hospital on 13th of February 2010 as a consultant obstetrician and gynecologist, and Dr. Afzal as emergency medical officer on 4th May 2010. Dr. Rashmi retired on 30th June 2022 and Dr. Afzal on 30th June 2022. Both of them are pillars of our hospital, both as doctor and as a person. They have committed themselves to the hope and healing to the patients with various ailments. Dr. Rashmi and Dr. Afzal, you both have always kept and considered the interest of the hospital first and foremost during your tenure in the hospital. As per policy of the hospital administration, your services have been extended in continuation. Finally, we, the administrator, sisters, doctors, and all of the employees and staff present here acknowledge and honor you for your services which you have rendered in this hospital, and wish you all the best for your another tenure in this St. Joseph family. Thank you all, and everyone. चले जाओ ये तो
जीवन के आरंभ का नाम ही है आप, हमारी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि। आपकी सोच को हम आवाज़ देंगे, आपकी सोच को हम वीडियो आवाज़ देंगे, आपके ख्वाबों को आगाज़ हम देंगे। बहुत बड़ा था पहाड़ मुश्किलों का, उन नन्हे मुंडों की जान का परवाज़ हम देंगे। हमने आपसे सीखा है विषम परिस्थितियों में संतुलन कैसे बनाए रखें। आपने सीनियर डॉक्टर होकर हमेशा अपने सहकर्मियों को लगन से कार्य करने की प्रेरणा दी है। आज एक काम का अंत है और फिर से एक नई शुरुआत है। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसमें गम की क्या बात है। सिखा दिया है आपने जीवन और काम करने का सलीका। आपकी एक प्यारी कीमती सी मुस्कान के साथ हर पेशेंट का सदा हो रहा कल्याण। अब हम बात करते हैं हमारे एक और सीनियर डॉक्टर अब्दुल सर की, जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की नींव को मजबूत बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके एक मेडिकल लीगल दस्तावेजों को जोड़कर उन्होंने हमें बहुत मजबूत बनाया है। भाषा की सभ्यता और समय की नज़ाकत, इनसे सीखिए जनाब। ये है एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए लगा दी है अपनी जान। मरीज चाहे कैसा भी हो, ठीक हो जाएगा वो इनकी मुस्कान के साथ। और समय की प्रतिबद्ध था कि अपने हर दिल दोस्तों के लिए सिर्फ हाँ में ही रहता है इनका जवाब। हमारी सुखद अनुभूतियों के साथ बेहद लंबे मुश्किल सफर को सन 2010 से उत्तराख और आसान बनाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए हमारी इस पूरी संस्था की ओर से आप दोनों को आपके सफर और लंबे कार्यकाल तथा जीवन के अब इस अगले पड़ाव के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। छोटे छोटे पाँव से चला जो स्कूल की तरफ, तो क्या बताओ क्या क्या देखा वहाँ। खड़ा था कोई बाहों को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा आ जाओ यहाँ। तो छोड़ मम्मी का हाथ चला मैं उनके साथ और पीछे मुड़ के बाएं कह दिया। इस तरह से चैप्टर 1 शुरू किया। Thank you, ma'am. Thank you, sir.
थिंग, बल्कि जब सिस्टर ने मुझको सैटरडे को ये बताया तो मैंने तो ये कहा कि सिस्टर जो चीज़ जून में हो चुकी है उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, बट शी इंसिस्टेड नो, वी ऑल हैव टू बी टुगेदर एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस थिंग। मेरे को पता है जब यहाँ पे हम लोग पहले कभी इकट्ठे हुआ करते थे तो एटलीस्ट सारा ओपीडी करने के बाद मेरी नज़र तो यहाँ रहा करती थी। लखनऊ की, और होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो लखनऊ की चाट बहुत मशहूर है, आप सबको मालूम है। तो मैं आपको जो है आज एक चाट बनाना बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आप सबों की भूख और बढ़ेगी। सो लेट मी स्टार्ट। हम लोग सभी, मतलब नेचुरली हम लोग 2010 में आए, मेरे बहुत से कोलीग्स हैं वो मुझसे पहले से यहाँ पर थे और जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया। तो आज हम लोग अपनी जो रेसिपी है वो बता रहे हैं मटर की चाट की। ओके, तो वी ऑल वर प्रोफेशनली सोक्ड मटर के दाने जो यहाँ पे आए अपने अपने प्रोफेशन में भीगे हुए और यहाँ आए। किस में आए? सेंट जोसेफ वाले कुकर में, ठीक है। अब जब सेंट जोसेफ के कुकर में आए तो सिस्टर जोसेटा ने ऊपर से ढक्कन बंद करके विसेल लगा दी, ठीक है, और नीचे से लगाई आग। ओपीडी आवर्स, लॉन्ग ओपीडी, नाइट कॉल्स, मेरे फील्ड में देखा जाए तो लेबर रूम, कैजुअलिटीज, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग बॉयल किया। जब बॉयल करके कुकर खुला तो वी ऑल वर वेरी सॉफ्ट एंड होमोजीनस। मटर बननी तैयार हो गई। वी ऑल वर सोक्ड एंड इक्वली होमोजीनस, अपने अपने काम में लग गए। अब क्या होना था? अब चढ़ाया एक तवा, तवे में नीचे से लगाई आग। किस चीज की आग लगाई? लीगल फॉर्मेलिटीज, NABH, तवे पे बैठे हुए थे हम लोग। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको फैसिलिटीज का ऑयल या घी कह लीजिए, शुद्ध घी की चाट है तो घी साथ में दिया, लाइक मॉड्यूलर ओटी, फेस लिफ्टिंग ऑफ अवर ओटी, एक्सटेंशन ऑफ प्राइवेट रूम्स, मेनी डिफरेंट फैसिलिटीज। सो उस घी में धीरे धीरे हमको भूना गया, तब जाके हम लोग ज्यादा क्रिस्प और मैच्योर हो गए। एंड नाउ वी आर प्रेजेंटेबल टू द वर्ल्ड। दैट इज हाउ मटर की चाट तैयार है। अब मसाला आ रहा है, अब मसाला आ रहा है। कभी कभी कुछ, मुझे लगता है सब समझ जाएंगे, कुछ खास प्रोफेशन के लोग जो हमारे पेशेंट बन के आते हैं तो नमक, मिर्च और नींबू का काम करते हैं हमारे ऊपर। एंड कभी कभी बहुत से ग्रेटफुल, सॉफ्ट, वेल बिहेव्ड पेशेंट होते हैं जो दही और चटनी का काम करते हैं। एंड दैट इज हाउ वी ऑल आर प्रेजेंटेबल एंड मैच्योर एज ए गुड मटर की चाट। इज इट नॉट? Let me come to dessert now. This was just, मुझे अभी ओपीडी में थोड़ी देर पहले ही बताया, मैडम आपको भी कुछ बोलना होगा। तो ठीक है, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर दिस ओकेजन। तो मैंने ये चीज़ सामने रखी, बट एज अ गुजिया या एज अ डेजर्ट, जस्ट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट to the administration who gave me again this opportunity and they trusted me so well. हमने कुछ नई चीज़ें जब आए और स्टार्ट करने की कोशिश की, उन्होंने हमें पूरी तरह से एनकरेज किया। मैं अपने सब कोलीग्स का, आप लोगों की वाकई हृदय से आभारी हूँ। जब ज़रूरत पड़ी अनकंडीशनली आप लोगों ने मुझको सपोर्ट किया। आई एम रियली रियली हैप्पी डिस्पाइट ऑल थिंग्स, all the nursing staff, all the, I should say, from the reception till labor room and the OT, and you all people are very, very encouraging. And what I love most about the St. Joseph is its environment, its discipline,
एक मेथड, हमको मालूम है कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं आइए, आपका ऑफ डे तब भी आइए, पेशेंट देखिए, बट दैट सेव्ड सो मैनी लीगल हैसल्स. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबाउट माय ओन डिपार्टमेंट, थैंक यू डॉक्टर अंजू, थैंक यू मंजरी. कहा ये जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, हम 3 तलवार एक म्यान में फ्रॉम 2010 है. Without any controversy, we all are together and they have supported me so well in everything. And thank you my dear juniors, Dr. Anupma, Dr. Neha, Dr. Leena, Dr. Azra, and ये जो छोटी छोटी 2 कलियाँ हमारे बीच में आई हैं, NABH वाली Dr. Pallavi and Dr. Mariam. I love you all. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, खास करके 2 जगह मुझे अपने डिपार्टमेंट का सपोर्ट जो है वो इतना अप्रिशिएबल लगा. द वन थिंग आई थिंक यू ऑल रिमेंबर नाउ, द नर्सेज डे जो हमने सेलिब्रेट किया था, मुझे लगता है अभी भी याद होगा. उसमें मेरे डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की थी एंड वी सेलिब्रेटेड इट ब्यूटीफुली. मुझे लगता है आप सबके पास उनकी मेमोरीज हैं. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल इज ड्यूरिंग कोविड डेज, ये डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स थे, दे हैव देयर फैमिलीज, इनकी फैमिलीज की तरफ से प्रेशर था, नाउ लीव द जॉब, क्योंकि तब तक कोविड वैक्सीन आया नहीं था, बट दे डिड द ड्यूटी, 12 आवर लॉन्ग ड्यूटी उन्होंने की अपने ऊपर रिस्क लेके, और यही कारण था कि हमारा डिपार्टमेंट उस कोविड टाइम में सर्वाइव कर पाया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैनेजमेंट का इज्जत अफजाई के लिए मैंने 4 टर्मार दिया और ज़बरदस्त तरीके से. मज़ीद बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये सफ़र हमारा हॉस्पिटल के साथ बहुत अच्छा रहा. उम्मीद करते हैं आप लोगों के साथ और अच्छा गुजरेगा.